डॉक्टर्स जनरली से कि प्रॉब्लम्स रिवर्स नहीं होती बाय इट्स ह्यूज बिजनेस। राइस रोटी खा के कोई मोटा नहीं हो सकता। जंक फूड खा रहे हो वो मोटा कर रहा है आपको। अब वो पाम ऑयल में बना हुआ रस्ते का नूडल्स खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, वो आपको मोटा कर रहा है। ऑब्वियसली इफ यू आर ईटिंग दिस मच ऑफ राइस it is a problem. You have to balance out your plate. So everyone's body is designed in a very unique way. Fat खाने से people become fat. ये भी एक myth है. There is good fat and there bad is good fat. fat and there is bad fat. वर्कआउट एक बहुत छोटा रोल प्ले करता है. पूरे दिन जिम में बिता देने से आप पतले नहीं हो जाओगे. Actually this is also a myth कि दाल is a source of protein. A lot of people think so. Hello and welcome to India Today Any. Myself Ashmita Saha. Today, to mark National Nutrition Week, we are diving into all things nutrition, health and well-being, things that affect us every single day. From fat diets to common myths and even those sneaky health issues like low energy, poor digestion and unbalanced diets, we have all been there. But how much of what we know about nutrition is really true? To help us clear the confusion, we are here to speak to a nutritionist from Guwahati who will answer all the burning questions and bust some myths. Let's talk with her. Hello Tamanna, welcome to India Today Any. Thank you so much. So we are here to learn more about how to lead a healthy life and the myths around it. Yeah. So help us understand it better. Completely. Tell our viewers about the importance of National Nutrition Week. So I think this started. Normally it is celebrated from 1st September till 7th September. Yeah. So it has been started to create an awareness among the audience, among the people about nutrition. So a lot of people are unaware of. A lot of people are unaware that nutrition is related to healthy lifestyle or health issues. So a lot of people are getting a lot of health issues because of a wrong lifestyle, because of not eating correct, not taking in correct nutrients. So to create an awareness, to eliminate overnutrition, undernutrition, malnutrition, just for that I think this Nutrition Week has been celebrated. Okay, so basically when a person falls sick, so he or she directly goes to a doctor, but they are not aware कि maybe ऐसा कुछ खाना हमने खाया होगा जो कि नहीं खाना चाहिए था. So this week basically creates an awareness for everyone. Creates an awareness that nutrition plays a very big role in curing your health issues, in reversing your problems, health problems. A lot of issues like the lifestyle disorders that like we were discussing, diabetes, thyroid, PCOD, fatty liver, all these issues are related to wrong nutrition or wrong eating habits. Okay, so this leads me to the second question. So basically, tell me, so I have seen people, struggling with diabetes, thyroid, teenagers are getting diabetes nowadays. Right. And PCOS is like it is rising at an alarming level now. Correct. So just tell us, what exactly is the reason why these health related disorders are coming up? So the frequency of the cases are increasing so much, and how it can be curbed through healthy lifestyle. So this is a very interesting question. Most of the health issues that we are seeing today is because of wrong lifestyle choices. Okay. So the kind of lifestyle choices we have, including wrong eating habits. A lot of people are eating wrong food and they don't even know about it. Like eating processed or junk food, eating food that is readily available, coming in a packet. A lot of people are eating foods that are ready to eat, ready-made, like cornflakes, muesli, or don't tell me these. We are not healthy at all. These are the reasons for diabetes and fatty liver and high cholesterol, high triglycerides, PCOS. So anything which is there on your shelf for more than 2 days, we are not supposed to have that. We are not supposed to have that. Why? Because that contains a lot of preservatives. Let's say you have made a bowl of rice. Would you eat it the next day? Or we generally avoid. You would generally avoid. But something which has been made in a factory, not even at your home, and has been kept on the shelf for 3 months, 6 months, 9 months, you're eating that. So how is it staying for so long? Because of the preservatives that we have put in. So that preservatives are going inside our body.
that way eating, that is creating a lot of health issues inside our body, harming our organs, and that is how one by one we are getting lifestyle disorders, which is Okay. diabetes, fatty liver, PCOS, thyroid, cholesterol. All these are lifestyle disorders. Mostly when you go to a doctor, they would say this is now a lifetime thing. Once you are diabetic, you will always be a diabetic. But it is not true. Once It is you- not true? It is not true at all. This is the biggest myth that you have debunked now. It is not true. We have helped so Even this is the many- same case for thyroid also. Same. We have helped so many thyroid patients to reverse their thyroid forever. Okay. We have helped so many diabetic patients to reverse their diabetes forever. So these are all lifestyle disorders, as I told. So once we correct our lifestyle, which includes your right eating habit, eating on time, eating the correct nutrients at the right time, moving, like nowadays the teenagers or we as working professionals, we are having a sedentary lifestyle. True. We do not have time to move our body. Yeah. So because of having a sedentary lifestyle, we tend to have we are having these kind of health issues because we're not moving only. So the food you're eating, it is just getting stored as fat. It is just giving you insulin resistance. It is just giving you all these kind of issues We are not burning it. because we're not burning it. Yeah, okay. Because we are just, see, earlier the lifestyle earlier also our parents used to eat the way we are eating right now. Maybe not junk, maybe not processed food, but they used to eat very rich, fried also they used to eat, everything they used to eat. Nowadays our parents would say we used to eat, हम तो रोटी खाते थे, हम पूरी खाते थे, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम लोग खाते हो बीमार हो जाते हो. हाँ. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, हम मूव नहीं करते, हम उसको यूज नहीं कर रहे. वी आर ईटिंग फूड फॉर एंजॉयमेंट एंड नॉट फॉर एनर्जी. हम खाने को क्यों खा रहे हैं? टेस्ट के लिए, Right. एंजॉयमेंट के लिए. इमोशंस अटैच्ड है हमारा फूड के साथ. अभी मैं अगर आपको आपके फेवरेट फूड का नाम बोलूंगी तो आपके मुंह में पानी आने लगेगा, बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड विद द फूड. वी आर टेस्ट बड्स आर अटैच्ड टू इट. हम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमको अभी ताकत चाहिए, अभी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और हम उसको यूज भी नहीं कर रहे. अच्छा मील लिया हमने और हम बैठ के वापस काम कर रहे हैं. हाँ, right. तो फिजिकली वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी एंड वी आर नॉट ईटिंग राइट. मोस्ट ऑफ द पीपल नीड शॉर्टकट दीज डेज. उनको चाहिए अभी दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाला, खा के चले गए, हाँ. ब्रेड में बटर लगाया एंड चले गए, एक ग्लास दूध पिया एंड निकल गए. सो क्या हो रहा है इससे? आपको सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा. अगर आपको सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा तो आपके बॉडी में डिसबैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है. सारे इश्यूज आप देख लो. थायराइड में क्या होता है? TSH डिसबैलेंस होता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है आपका, Okay. वो डिसबैलेंस हो जाता है. PCOS में क्या होता है? आपके सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं. LH, Okay. FSH, ये सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्ट बनता है ओवरीज में. So ये PCOS भी it is Reversible. curable. Yes, Okay. yes. Okay. मेरे अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे जो पिन पोस्ट है बीच वाला, वो PCOS रिवर्सल का केस है बहुत रीसेंट. Okay. तो जिसमें हम लोग ने एक यंग 21 ईयर ओल्ड लेडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है PCOS का. शी इज Okay. कंप्लीटली हैविंग नो PCOS नाउ एंड Okay. हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ. By just following a healthy lifestyle, she has Just a healthy diet, that's it, nothing wow, else. and now she has fought this incurable disorder, which is said. So see, it's something controversial जो मैं बोलने जा रही हूँ, but doctors generally say कि problems reverse नहीं होती. Why? It's a huge business. Yeah, true. ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है. आज अगर आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा नेचुरली, बस लाइफस्टाइल ठीक करके, हेल्दी डॉक्टर ईटिंग करके, के पास जाएगा कौन? डॉक्टर्स के पास जाएगा या नहीं वो तो बहुत दूर की बात है. जो उसके पीछे चीजें हम खरीद रहे हैं, जो इंसुलिन खरीद रहे हैं, जो मेडिसिन हम खरीदे, दे आर सो एक्सपेंसिव. वन इंसुलिन कम्स टू 14,000. सो इट्स सो एक्सपेंसिव. Yeah. एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस करना पड़ रहा है, वो रुक जाएगा. ये पूरा का पूरा जो बिजनेस क्रिएट किया गया है हमारे डिजीजेस के अराउंड, वो सब कुछ कैसे चलेगा? तो अगर हमारा नेचुरली डिजीज ठीक होने लग जाएगा एंड पीपल विल नो अबाउट इट कि बीमारियां ठीक हो सकती है सिर्फ एक अच्छा डाइट फॉलो करके, उसके बाद सब ऐसे ही करेंगे और Yeah, पूरा जो true. बिजनेस आज सालों से बना आया है वो खत्म हो जाएगा. So that is why no one would tell you this. Recently, before you came in, the client told me this कि मैंने तो सुना है, मुझे आज तक बचपन से थायराइड है, मैंने सुना है कभी भी क्योर नहीं हो सकता, डायबिटीज कभी भी क्योर नहीं हो सकता, और आप बोल रहे हो क्योर हो जाएगा. मुझे तो डॉक्टर्स, मैंने पूछा उनसे किसने बोला, तो डॉक्टर्स ने बोला कि कभी क्योर नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाट आई से कि तो कैसे चलेगा फिर काम उनका. Right.
तो बट एवरीथिंग इज क्योरेबल. एंड ये जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ये सालों से बोला जा रहा है, इवन वी आर फेड विद दैट नोशन कि अच्छा थायराइड हुआ है तुमको, ये तो अभी कभी जिंदगी भर तुम्हें सुबह उठ के टैबलेट्स खाने पड़ेंगे. सो दैट इज व्हाट वी हियर जनरली फ्रॉम कॉमन पीपल. We fight with the clients, we have to fight with the clients every time because they come and say कि नहीं, सी अभी तो मुझे, मैं मेडिसिन नहीं छोड़ूंगी. आई टेल देम कि आप छोड़ के तो देखो, हाउ वुड यू नो कि आपका रिवर्स हो रहा है जब तक आप छोड़ोगे नहीं. Exactly. अभी आपका अगर नॉर्मल आ रहा है TSH, इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड लाइफस्टाइल, नॉट बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन. तो यू लीव दैट. बट इतना दिमाग में डाल दिया गया है कि आप नहीं छोड़ सकते उसको, तो पीपल थिंक दैट वे कि no, this is something we cannot drop. But those people who have believed in me, so that is something to do with your mental power also, like you know we are fed with certain kind of you know wrong notions and हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो शायद थायराइड कभी ठीक नहीं होगा. So this is like a dual war. आज तक कोई भी बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हुई है. Have you heard anyone reversing health issues with medicine? Ever? Have you heard anyone starting a diabetes का tablet and not dying without taking a tablet? एंड तक भी उनको मेडिसिन लेते ही रहते हैं वो मरने तक. ब्लड प्रेशर हो गया एक बार तो एंड तक भी मेडिसिन लेते हैं. एक दिन छोड़ दो, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा. Yeah, right. So they are very much dependent on medicines. Exactly. Okay. Yesterday a client told me she had a miscarriage because of not taking medicine just for one day of blood pressure. Just एक दिन उन्होंने ब्लड प्रेशर का मेडिसिन मिस कर दिया जिसके वजह से उनका मिसकैरेज हो गया था. Okay, तो मेडिसिन हमें इतना ज्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है. That's why I say let food be the medicine. खाने को मेडिसिन बनाओ. Everything can be cured with food. Just the right food you need to choose. The right food for your body, the right nutrients for your body. You start choosing that, if you start eating right way, in a right portion, like आपके meals में macronutrients होते हैं, micronutrients होते हैं. Okay. So it's carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals and water. Okay. ये 6 nutrients अगर आपके प्लेट में every day है, तो आपका प्लेट balanced है and you are getting everything from your meal itself. कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, कोई एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है. आई नेवर प्रेस्क्राइब मल्टीविटामिन्स इन माय डाइट. Okay. या कोई भी तरह का सप्लीमेंट, कुछ भी सप्लीमेंट्स में नहीं देती. दैट इज माय USP कि मैं हमेशा जो भी क्लाइंट आता है, आई डू इट ओनली विथ food, only with diet and their habit change, lifestyle change. Okay, so food is the medicine that Food you is the medicine. prescribe to your clients. Exactly. Okay, since you have said a lot of things, but one thing it goes you know without saying कि जो हमारा काम है, the lifestyle that we are following, हमें ऑफिस जाना ही है, उस टाइम पे जाना है, खाने के टाइम पे हम लोग इतना मतलब सोच नहीं पाते कि नहीं ये प्रॉपर बैलेंस डाइट होगा कि नहीं. आप हमें ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली शुड वी डू कि हमें उस कम टाइम पे हम वो बैलेंस्ड डाइट भी फॉलो करें, अपना काम भी ख़त्म करें एंड गेट अ प्रॉपर गुड स्लीप ऑल्सो. सो जस्ट गिव अस स्मॉल हिंट कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है. देखो, सबसे पहली चीज़ तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ, आवर हेल्थ. हमने अपने करियर को, अपने वर्क को और अदर कमिटमेंट्स को वी हैव प्रायोरिटाइज्ड इतना ज़्यादा दैट वी हैव केप्ट आवर हेल्थ इन दी लास्ट. सो दैट इज द रीजन व्हाई आवर हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस. Okay. We do not have time for ourselves. Why we are working, why we are earning money, why we are doing so much of the things for ourselves. For ourselves. यही पैसे आप spend करोगे जब आपकी health खराब हो जाएगी. जो आप अभी earn कर रहे हो, whatever you are earning, this will be spent on your body only in the end. Because right now you are not taking care of it. So first thing is you have to make out time for your body. I have a very very tight schedule. I work from 10 to 7 every single day except Sundays, and I maintain my diet in a very proper way. So this is just an excuse of not eating right, I believe. Okay. So if you are a smart person, what you would do, you would plan your week ahead. Like you will plan your week one day ahead, and you will just prepare everything you want to eat in that entire week. Like if you want to eat a bowl of rice and dal, curd in your lunch, so you will have to do the preparation at night. If you don't have time, do the preparations at night or wake up a bit early. 30 minutes of time you give it to yourself and just prepare the entire day's meal and pack it in a tiffin. Carry it with yourself in the office so that whenever you are hungry, you're not ordering from outside. You have to carry your food along with you. If you're not having time to eat, go home, cook, eat. So prepare all the 3 meals. Carry fruits with you. Carry salads with you.
Like you can carry cucumber, you can carry carrot. Those are the vegetables you can just Peel it and just have it. Or an apple or a banana. Yeah. Just peel this thing and have it. One apple, just wash it and have it. So these are the things which you can always carry. You can carry your nuts, you can carry your seeds. If you're a non-vegetarian, you can carry eggs, Okay. boiled eggs, or Okay. that is easily available also. Okay. So then you can keep yourself hydrated, having coconut water, some detox, some infused water. So those kind of things you can include in your diet. But I say it is not very difficult to manage your diet. There are a lot of recipes that can be cooked in 10 to 15 minutes. Like you can cook a vegetable poha. Okay. You can just cook. How about having oats? You can cook your oats. That Okay. is also very easy to make. Yeah, It true. hardly takes time. You can just chop your vegetables last night. In the morning, just put a bit of oil, put all the vegetables, saute, put the oats, and it's ready, and you just eat it. If you don't have time to eat, you eat it while you're traveling. Okay. So सब चीज़ हो सकता है अगर आप चाहो तो. अगर आपको आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, आप लाइक एग्स कैरी कर रहे हो, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप टोफू, पनीर या पिछले रात को अपने टिफिन में रेडी करके रखे हो, आपको जैसे ही काम करते करते टाइम मिला, यू ईटिंग दैट, यू कैरिंग योर फ्रूट्स, यू ईटिंग इन द मिड मील, जैसे भी आपको भूख लग रहा है, तो यू नॉट स्नैकिंग ऑन द बिस्किट्स, ऑन द Okay. टी. So having biscuits and are also not obviously not. So healthy. anything that is inside a packet Okay. is not good. Okay. That is what I say. Packaged foods Packaged foods can are a never big be good. no-no. Very big no-no. Why? Because again, preservatives will always be there. If you check the ingredient list, एक तो कुछ भी हम खरीद रहे हैं ना, उसमें ingredient list check करना बहुत ज़रूरी है. वो नहीं करते लोग. वो हम लोग ऊपर का वो देखते हैं कैसे मार्केटिंग किया गया है, उस पर कितने अच्छे पिक्चर्स हैं, कितना सुंदर लग रहा है वो. That's how we buy it. We never like हम पीछे नहीं देखते कभी भी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या है, न्यूट्रिशन टेबल कैसा है उसका. अगर उसमें इतना ज़्यादा शुगर एडेड है, इतना ज़्यादा सोडियम है, एसिड रेगुलेटर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, उस चीज़ को आप अपने बॉडी में डाल रहे हो जस्ट फॉर द टेस्ट और जस्ट टू सेटिस्फाई योर हंगर. इंस्टेड कैरी नट्स विथ यू. भूख लग रहा है, थोड़ा सा नट्स खा लो, थोड़ा सीड्स खा लो, एक फ्रूट खा लो, कोई वेजिटेबल खा लो जो आप रॉ खा सकते हो. ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हो. तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो. जब भी क्रेविंग हो रहा है, यू डोंट हैव टू ईट. 3 मील अच्छे से करो. वो 3 मील कैन बी वेरी सिंपल. यू कैन हैव नॉर्मल दाल चावल. A lot of people are scared of rice these days. Yeah, I don't know why. actually, yeah. Like They said rice कि is such a good food. हाँ मोटे हो जाते हैं and all that. It's a myth. It's a complete myth. Okay. राइस रोटी खा के कोई मोटा नहीं हो सकता. जंक फूड खा रहे हो वो मोटा कर रहा है आपको. आप वो पाम ऑयल में बना हुआ रस्ते का नूडल्स खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, वो आपको मोटा कर रहा है. तो हम ब्लेम राइस को कर रहे हैं. Obviously, if you are eating this much of rice, it is a problem. You have to balance out your plate. Your plate should be divided into 4 parts. Okay. One part will be your rice or roti, or if you are a person who likes both, you can take a small portion of rice and 1 roti, or 2 rotis as per your hunger. One portion should be your salad. Okay. One portion should be your cooked sabzi. Sabzi should be actual sabzi. मतलब जैसे आपका green vegetables हो गया, root vegetables हो गया, या capsicum वगैरह हो गया. One part should be your dal. That can be your legumes. It can be matar, it can be rajma, chola, moong dal, anything. Soya bean, anything. So that is there. And one portion outside your plate should be your source of protein. That can be your curd, paneer, tofu. If you're a non-vegetarian, you can take eggs, chicken, fish. Yeah. So this is a complete balanced meal that you can have. If someone eats like this, they can never have any health sort of issues that we are disease. listening Okay. to these days. Yeah. Like there can be no diabetes, no thyroid, no PCOS, PCOD. Obviously, there is a specialized nutrition plan for every issue. But Okay. if you're a So do you think the nutrition plan that you are talking about, it differs from person to person, it right? completely differs Yeah, from person okay. to person. Even both of us sitting here might have same height, same weight, Yeah. maybe similar conditions. Still, we'll have a very different diet plan. Okay. And So why it's is that completely so? something. So everyone's body is designed in a very unique way. Okay. You have your unique digestive system. Your reaction to every food will be very different Okay. from me. Okay. You might have certain conditions that I might not have, which you might not know. So Okay. we do a very detailed consultation, one and a half hour, and understand the person's body type, the habits they have been having since birth. अभी से लेके अभी तक आपको बचपन से लेके अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है,
उन चीज़ों को समझते हुए कौन से फूड से आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, आपकी चॉइसेस भी अलग हो सकती है मुझसे, तो हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा होगा. सो सभी के लिए वो डाइट बहुत डिफरेंट होता है. ओके, सो नाउ आई एम इंट्रिग्ड अबाउट समथिंग कि हम जो सुपरमार्केट में जाते हैं, वी बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सो डू यू थिंक आर दीज एडवाइजेबल? इनमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या फिर हम जो मंडी में जाके सब्जी लेते हैं, दैट इज बेटर? See, in today's time we will not get organic, anything organic. सभी में थोड़े बहुत pesticides, insecticides, सब कुछ होता ही है. उनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, there are a lot of things put inside. Even the milk we are taking, even the grains, anything we are taking, nothing is actually organic until unless you get it from a specified shop. तो अब जब options इतना कम है, तो I think it is completely okay to buy it from a supermarket or mandi. It's just that if you know the source, कहाँ से आ रहा है, तो it's much better. तो आप confidently ले पाओगे. But अपने तरह से precautions ले लेना चाहिए. घर पे आप ऐसे liquids रखो जो आप जिससे आप वॉश कर सको अपने वेजिटेबल्स को. आई थिंक आफ्टर कोविड अ लॉट ऑफ लिक्विड्स हैव कम इन, जो आप जिससे आप सब्जियां, फ्रूट्स अपनी वॉश कर सकते हैं, जिससे एक हद तक आपका जो सो वैसे लिक्विड्स भी मिलते हैं जो कि सरफेस लेवल के प्रिजर्वेटिव्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स इन लोगों को भी हटाते हैं. ओके, सो वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट. हम तो नॉर्मल पानी से धोते हैं, फिर भी सोचते हैं कि इतना आपको मिट्टी निकल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं. बट और एक तरीका है, आप नॉर्मल पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डालकर आप सोक करके रख सकते हो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को. वहां पर भी बहुत हद तक आपका प्रिजर्वेटिव्स निकल जाता है. ओके, दैट वे आल्सो यू कैन डू. So there are few techniques that you can follow, but see, authentic vegetable या fruits या ये सब चीजें मिलना थोड़ा difficult हो गया है. In your entire career as a nutritionist, वो कौन सी अनफाउंडेड क्वेश्चंस है जो आपको क्लाइंट्स पूछते हैं, यू आर लाइक अरे यार दिस इज अ मिथ, कितना समझाओ? आपने एक बोला ही है ऑलरेडी कि लोग सोचते हैं कि थायराइड, डायबिटीज ये सब कभी क्योर नहीं होता. अदर देन दैट, जिन क्वेश्चन से आप काफ़ी मतलब अभी इरिटेट ही हो चुके हो कि दिस आर कम्प्लीटली मिथ, लेकिन अभी लोगों पे इतना ये फीड हो चुका है कि उन लोगों ने ये सच माना है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं? So there are few questions, yes, I believe, जो हर दिन हम फेस करते हैं. उसमें से ये है एक कि राइस को लेके बहुत डरते हैं लोग, राइस खाने से मोटे होते हैं, which is not true. फैट खाने से people become fat, ये भी एक मिथ है कि it's not like कि good fats खाने से you will never gain fat. Okay. It's about the quantity. Maybe in a very big quantity if you eat, then you will obviously gain weight because you will exceed your calorie intake. So there is good fat and there bad is good fat? fat and there is bad fat. An example of good fat? Nuts, seeds, घी, coconut oil, olive oil, ये सारे आपके good fats हैं. Okay. Bad fat में आता है आपका trans fat, saturated fat, जो आता है आपके palm oil, refined oil से, जो हम तलावा खा रहे हैं ना, उसमें से जो ऑयल जो है वो सारे आपके बैड फैट्स हैं. ओके. तो आई जनरली से ऑयल का यूसेज कम कर सकते हैं हम लोग. ये जो अच्छे फैट्स हैं वो हम ज्यादा इंटेक कर सकते हैं. इवन बहुत लोग एग के योक से डरते हैं. Yes. I heard that. हाँ. Yeah. What is the truth behind it? एग में जो योक होता है वो अच्छा फैट है. इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल. पीपल से कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अंडे से, नहीं बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है. एग का जो योक है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल. अगेन कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ 2 टाइप्स. सो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मिलता है हमको वहां से. कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड बाय आवर बॉडी. इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट एन एनिमी. खराब वाला कोलेस्ट्रॉल हमारा एनिमी है. तो वो एग से भी जो योक से भी जो फैट मिल रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल जो मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो वो नहीं अवॉइड करना चाहिए. अगेन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो फटाफट वेट लूज हो जाएगा और फिर कुछ भी खा सकते हैं. अच्छा. 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय योर न्यूट्रिशन. ओनली 20% इज बाय वर्कआउट. ओके. या 80% इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू ईट. 20 मतलब वर्कआउट एक बहुत छोटा रोल प्ले करता है, बट एवरीवन शुड वर्क आउट. आई वुड नॉट से कि छोटा रोल प्ले करता है तो यू शुड नॉट. 20% आपका वर्कआउट का रोल होता है. तो पूरे दिन जिम में बिता देने से आप पतले नहीं हो जाओगे. आई हैव सीन पीपल वर्किंग आउट फॉर 1 year 2 years एंड सीइंग नो रिजल्ट्स. तो एंड डाइट आप अच्छे से फॉलो करा, आपको 3 महीने के अंदर अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज दिखेगा विदाउट इवन वर्किंग आउट. Oh wow. So you just follow a proper good balanced diet and all your problems will be solved. Yes. In 3 months you'll see a new person.
So, Okay. उतना टाइम ही देना है आपको, हाँ. उतना भी नहीं देते लोग, हाँ, बट उतना right. टाइम देना 3 months is actually very less. अगर people are ready to invest, you know, thousands of rupees and 1-2 साल ये लोग जिम ही हिट कर रहे हैं, हाँ. then why not 3 months to good food? Yeah, right. Okay. So that is a very big thing. Then supplements को लेके भी बहुत लोगों को रहता है कि like is it bad, is it good? See, supplements ज़रूरी तब होता है जब आपके फूड से आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा. Suppose you are a vegetarian. Now vitamin B12 and vitamin D is not available in vegetarian food that much. बहुत ही कम चीज़ों में है, जैसे मशरूम्स में है, मिल्क में है, डेयरी प्रोडक्ट्स में है विटामिन B12. विटामिन D तो है ही नहीं किसी भी फूड में, किसी भी वेजिटेरियन फूड में. अब आप कहाँ से लोगे? तब आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. Okay. और एल्स आपको हर चीज़ में सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. A lot of people eat very less, they skip their meals and they depend on supplements. Okay. Just So supplements is it a shortcut that they follow? It's a shortcut. Okay. तो हाँ. ये करने से कभी भी कोई फायदा नहीं होगा. दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन. आई थिंक अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो रियल फूड पे आना ही पड़ेगा, होल फूड्स पे आना ही पड़ेगा आपको, वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा, वो सबसे अच्छा वर्क करेगा. और Okay. जहाँ पर पूरा नहीं हो सकता वहाँ पर आपको सप्लीमेंट लेना भी पड़ेगा. Right, right. So, It is ये completely based on your like body requirements. या फिर Exactly. यहाँ पे कभी कभी मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसकी वजह से शायद सप्लीमेंट्स लेना पड़े, बट मोस्टली इट कैन बी क्योर्ड थ्रू बैलेंस डाइट. सो देयर इज अ रिपोर्ट, आई गेस 74.1% you know rural people they are struggling with these kind of health disorders. Okay. And probably उनके पास वैसा proper sources नहीं है where they can you know get you know proper food or something like that. So उनके लिए क्या advice है आपका? Because now we are living in a place जहाँ पे everything is easily available. हम अपना body like and we also have the you know leverage of you know speaking to experts like you. But for people who are you know underprivileged, उनके लिए कुछ like what can they do to have a good life being in a condition जहाँ पे ये लोग अच्छे resources नहीं यूज़ कर सकते. So देखो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल फूड से सोल्यूशन नहीं मिलता. Okay, इट्स नॉट हाँ. ऑलवेज कि आपको बहुत फैंसी फूड ही खाना पड़ेगा टू गेट अ गुड लाइफस्टाइल. यू Okay. हैव टू हिट अ जिम, अ गुड जिम, और यू हैव टू हैव वेरी वेरी एक्सपेंसिव फूड टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप ऐसे जगह से हो जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है या आपका पॉकेट उतना अलाउ नहीं करता टू स्पेंड दैट मच, Okay. स्टिल सिंपल चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला दाल चावल, सिंपल सी चीज़ें, एक सब्जी. अगर आप मिल्क अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियसली कर्ड, पनीर यू कैन इंक्लूड. इफ यू कांट देन उससे सस्ती आती है, अंडे आते हैं, ठीक है, फॉर नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू गेट प्रोटीन. ठीक है, अदरवाइज आपको राइस एंड दाल से कार्ब्स मिल रहा है. उसके अलावा आपको जो आपके लाइक हेल्दी फैट्स है वो थोड़ा अगर आप घी वगैरह यूज़ कर सकते हो तो ओके, नहीं तो दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट. अदरवाइज वेजिटेबल्स आपको मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर वो पूरा आपको आ रहा है. सिर्फ प्रोटीन की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दाल से प्रोटीन मिल सकता है. दाल इज एक्चुअली दिस इज ऑल्सो मिथ कि दाल इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक सो. Oh yeah. दाल इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक्चुअली दाल इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Okay. Yeah, dal has protein, but that is also not a complete protein. So अगर आप दाल प्रोटीन के लिए ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है प्रोटीन का. तो ये थोड़ा बहुत करके हम कर सकते हैं. मैं सजेस्ट करूँगी उनको कि पानी बेटर क्वालिटी का मिल सके तो वो बहुत अच्छा है. घर का बना हुआ नॉर्मल खाना, वो जो भी आपका दाल चावल है, रोटी सब्जी है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो. सिंपल खाना खाकर भी आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं. यस, प्रोटीन इनटेक में थोड़ा सा कमी आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि हम अगर मिल्क अफोर्ड कर सकते. बस आई थिंक गाँव में तो मैंने देखा गाय होता है लोगों के पास जनरली, सो वहाँ से आई थिंक मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हो तो बहुत अच्छे से आपको प्रोटीन मिल जाता है. Okay, so this will help them to have a good completely. कुछ फैंसी नहीं चाहिए हमें. तो this is also a myth क्योंकि a lot of people they think if we cannot afford इतना अच्छा वो, तो इसलिए इसकी वजह से हम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर पा रहे. एक्सक्यूजेस है. हाँ, राइट. नहीं फॉलो करने के एक्सक्यूजेस हैं. Okay. इवन रूरल एरियाज में आजकल लाइफस्टाइल खराब हो रही है लोगों की ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम right. मूवीज एंड टीवी एंड जो भी है
उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनकी भी लाइफस्टाइल खराब हो रही है, उनके भी खाने पीने में चेंजेस आ रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो जो एक विलेज की लाइफस्टाइल है दैट शुड बी मच बेटर देन अस, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड। उनका जो पूरे दिन का एक्टिविटी लेवल होता है वो हमसे बहुत ज्यादा है। खुद से सारा काम करते हैं, घर का काम खुद से करते हैं, फार्मिंग करते हैं, गाय चराते हैं, तो ये जितने भी काम करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं। उसके बाद जो फूड उनको मिल रहा है वो ज्यादा प्योर मिल रहा है। True. क्योंकि so they should be more like they should be healthier than we are. Yes, okay. yes. So technically तो they should be healthier than we are. Okay. Being in urban cities हमें प्रॉब्लम आ रहा है because हमें प्योर नहीं मिल रहा चीजें, and we are exposed to a lot of you know processed food. Exactly. हम अफोर्ड कर पा रहे हैं खराब चीजें, हम वो एक्सपेंसिव चीजें उठा के घर पे ला रहे हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, which is not good at all for us. So all the packaged food they are not able to afford. We are the ones who are buying it and harming our health, and then we're not utilizing it also. We're not moving our body, that is getting stored in our body. Somehow it is just creating poison inside us. And that is a very big reason of disturbed gut health. Okay. So gut is something which has been gone for a toss for everyone, especially people in the urban area. I think सभी की हालत बहुत खराब है। मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं जिसमें गट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, and मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करती हूँ पहले अपना गट ठीक करना है आपको, उसके बाद ही हम आगे कुछ और कर सकते हैं। क्यों हो रहा है गट खराब? Alcohol, smoking is very common these days. Right. Then not sleeping on time, having a lot of stress, then eating processed and packaged food items, fried items बहुत ज़्यादा हो रहा है। So stress also leads to gut issues. Yes. Okay. तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो आपके गट में बैड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। Okay. गट का माइक्रोबायोम खराब हो जाता है पूरा। सो यस, इट लीड्स टू बैड गट। तो ये सारी चीजें हैं हमारे, जो मैं बोल रही थी आपको खराब लाइफस्टाइल। सो खराब लाइफस्टाइल से फूड खराब होने का नहीं होता, आप बिल्कुल मूव नहीं करते हो वो भी एक रीजन है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो। अ पर्सन शुड टेक आइडियली 8 to 9 hours ऑफ स्लीप, व्हिच वी डू नॉट। 6 to 7 hours इज मोर देन, लाइक 6-7 hours भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। But we see a lot of videos and all जहाँ पे बोलते हैं कि 6 hours is also fine and all. They are misleading basically. Misleading people. An adult should sleep for 8 to 9 hours. The amount of stress we are taking the entire day, the amount of things we are exposed to, पूरे दिन हम फोन पे या इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी रहता है, हमें चाहिए उतना ज़्यादा नींद, हमें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ सही कर रहे हो बट यू आर नॉट रेस्टिंग, योर बॉडी इज़ नॉट रेस्टिंग, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। इवन योर हाइड्रेशन लेवल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग बहुत कम पानी भी पी रहे हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो रही है, उनके स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, हेयर में इश्यूज आ रहे हैं, आपका फूड ही प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गट में इश्यूज आ रहे हैं। तो पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पानी को तो एज अ न्यूट्रिएंट काउंट ही नहीं करते। राइट इतना सोचते भी नहीं है। तो हमको बहुत जरूरी है वो भी मेंटेन करना। ये सारी चीजें जब हम मेंटेन करेंगे तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। सो इतना बड़ा रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई थिंक दैट इज द मेन रीजन कि बहुत ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस आना कि आप हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेक्ट न्यूट्रिशन से ले सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको गाइड कर सकती है, आपके लाइफस्टाइल को ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आई थिंक आप एक नया इंसान बन सकते हो, पूरा का पूरा बॉडी चेंज कर सकते हो इंटरनली और बाहर से भी। ट्रू। It's like a very big thing that we can have, but we are not utilizing. We are not utilizing because we are not much educated about it. We are not informed. Right. Okay. So, like, I have seen one thing. Now, whenever you open Instagram या फिर YouTube Shorts में आता है कि you get to see, you know, in 60 days आप इतना वजन कम कर रहे हो, and this we मतलब एक proper एक कम टाइम फ्रेम दे देते हैं और एक ह्यूज milestone you will achieve. So what is your take on that? इससे मुझे याद आया कि अभी मुझे क्लाइंट ने बोला था कि मैंने एक इंटरनेट डाइट फॉलो किया। Okay. 10 days, lose 10 kgs in 10 days. 10 kgs in 10 days. Okay. And he followed it. क्यों कर लिया? क्योंकि इस तरह से मार्केट करते हैं ऑब्वियसली कि कोई भी आपको बोलेगा कि आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज they are playing with the psyche of the person who is suffering basically, right? Okay. So he followed it and now he is suffering from anal fissure.
for past 4 years because of that Because diet. oh my god. That is the kind of issues you will face when you follow a internet diet, YouTube diet. कोई इंसान जो आपको जानता भी नहीं है, उसने बोल दिया आपको ये खाने से आपका ये हो जाएगा ना, वो फॉलो करे विदाउट ही और शी नोइंग योर बॉडी, योर रिक्वायरमेंट्स, एंड यू आर डूइंग दैट. आप अपनी बॉडी के This is scary actually. This is वेरी, एंड आई थिंक उसमें ऑडियंस की भी बहुत बड़ी गलती है. आपको एक एक्सपर्ट का एडवाइस देना चाहिए, ना कि एक इंटरनेट या यूट्यूब या गूगल से सर्च करके watch Exactly, this is the problem probably because people nowadays डॉक्टर या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाने से पहले सोचते हैं कि नहीं इंटरनेट से देख लेते हैं यार अगर कुछ. And this is like a very big example that you have given. Like our audience will definitely would want to be aware after listening to this कि ऐसे random इंटरनेट का एडवाइस लेके अपने हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए. कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए. True. आपकी बॉडी को आप जानते हो और फिर आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो और वो समझ के अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, दैट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट और एनीथिंग. अब जो शॉर्टकट्स आ गए ना, उसमें क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको शॉर्टकट में मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता. बिकॉज फैट लॉस या हेल्थ इशू रिवर्सल इज अ स्लो प्रोसेस. इट इज नेचुरल एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस. इट टेक्स टाइम. 1 kg फैट लूज करने में आपको अराउंड 1 वीक का टाइम लगता है. उसमें भी आपको 500 कैलोरीज डिडक्ट करना पड़ता है अपने फूड से. 500 कैलोरीज आपको बर्न करना पड़ता है एक्सरसाइज करके. दैट्स हाउ यू आर अंडर 7000 कैलोरीज एंड दैट्स हाउ यू लूज 1 kg ऑफ फैट. एंड इतना फैट बॉडी से जाएगा तो आपका 1 kg रिड्यूस होगा. और अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि टेक्निकलिटी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पीपल आर सेइंग कि अरे तुम तो कितना कुछ कर रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है. राइट. लेकिन ये लोग बोलते नहीं बॉडी फैट कम तो हुआ है, देन दे गेट वेरी सैड एंड वेट मशीन पे देख रहे हो. एग्जैक्टली. वेट लूज करना इज वेरी इजी. आपका मसल इतना सा भी लूज होगा, इट इज 1 kg. मसल इज हेवियर, फैट इज लाइट. Okay. तो फैट इतना जगह ले लेता है बॉडी का, वो वेट में लाइट होता है और जगह इतना लेता है. दैट इज व्हाई पर्सन लुक्स प्लम्पी व्हेन दे गेन फैट. एंड कोई इंसान का वेट ज्यादा है बट उनका मसल्स बहुत अच्छा है. उसका रीजन ये है कि मसल्स बहुत कम स्पेस लेता है आपकी बॉडी में. तो आप लीन दिखते हो लेकिन आपका वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरवेट हो. वो बहुत अच्छी चीज है. अगर आपको मसल्स का वेट ज्यादा है, उसकी वजह से आपका वेट ज्यादा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. उनको है कि वेट लूज करना है, वेट लूज करना है. अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रेजी अबाउट weight loss. You have to lose fat and gain muscles. That should be the technical thing. That should be the correct thing to do. अब ये जितने भी शॉर्टकट्स वाले डाइट आ गए हैं, 60 days, 90 days, 10 days, जो भी है, ये सब आपका वेट लूज करवा रहे हैं. वो सब आपका हेल्थ ठीक नहीं कर रहे. नहीं ठीक कर रहे. आपको क्या होगा, 10 दिन बाद डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाएगा बॉडी में. क्यों? क्योंकि वो वेट कैसे लूज कराएंगे, आपको भूखा रख के, सैलेड्स पे डालकर, फ्रूट्स पे डाल के, जूसेस पे डाल के, या आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे, या आजकल वो आया ना शेक्स वगैरह, पानी में घोलते हैं और पी जाते हैं. पूरे दिन कुछ नहीं खाना, वो शेक पी के रहना है. वो सारी चीजें करके आपका क्या होगा, इंस्टेंटली वेट लूज होगा. व्हाई यू नॉट ईटिंग, बट द डे यू ईट, कभी ना कभी तो खाओगे. जिंदगी भर तो शेक्स नहीं लोगे या जिंदगी भर फ्रूट्स और सैलेड पे नहीं रहोगे, खाओगे, उस दिन डबल वेट बढ़ जाएगा. ओके, सो दैट इज हाउ दे कंडीशन द बॉडी. राइट. एंड डेफिशिएंसीज इतने ज्यादा हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने सारे हो जाते हैं, वीकनेस होता है, हेयर फॉल होता है, स्किन लूज हो जाता है, यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड. स्किन, आपकी स्किन में ग्लो ही नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ डाइट्स विल ऑलवेज हार्म योर बॉडी. सो नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स. इससे अच्छा तो जो कर रहे हो वही कर लो. ट्रू. शॉर्टकट में मत जाओ. करना है तो अच्छे से करो. इट शुड बी लाइक अ लाइफस्टाइल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन विथ द चेंज इन माइंडसेट. आपको पहले माइंडसेट को चेंज करना है. माइंडसेट टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, माइंडसेट टुवर्ड्स ईटिंग राइट, माइंडसेट टुवर्ड्स मूविंग योर बॉडी. एक प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या, अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, उनको समझना जरूरी है. पहले हैबिट्स को बनाना जरूरी है. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको इन चीजों को लाइन पे लाना है. It's not like one day thing. So before we wind up, we want to know if at all you have any experience that you want to share with our viewers. I will share my personal story, I think. Okay. Yeah. Okay. So a few years back, I think 5 years back, I was overweight. I was quite like this, and I was a pre-diabetic. Okay. At the age of 19, I was diagnosed with pre-diabetes. So I'm my first patient, first client. I lost 15 to 20 kgs weight in 4 months and I reversed my diabetes. आज तक भी मेरे रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता. So वो 4 महीने में मैंने अपना पूरा का पूरा डायबिटीज रिवर्स किया था.
लॉकडाउन के टाइम की बात है, आई थिंक 2019 की बात है शायद, 2020 की बात होगी शायद। उस टाइम पे मैंने घर पे रहते हुए सिंपल मूवमेंट्स इंक्रीज करके, डाइट में चेंजेस करके, जो डाइट मैं आज डायबिटीज पेशेंट को देती हूँ रिवर्सल के लिए, वो चीज़ें मैंने उस टाइम अपने साथ शुरू करी थी। But how did you, like that time you were a practitioner of this, Yes, or somebody guided you? No, I was actually a student and Okay. I just completed my studies. Okay. And I was about to start my job. Okay. That was a period when I started experimenting things on my own self. And that is how I just did the things I learned. Okay. And the things I felt was right, and I just did few things and I reversed my diabetes completely. Okay. I lost weight until now, 5-6 साल हो गए वैसे की वैसी हूँ। तो it's like whatever I do is permanent. Even being a nutritionist also demands you to be a counselor, like उनके mental pre notions जो हैं उनके साथ आपको See, वो करना yes, a पड़ता है? nutritionist is a counselor. Yeah. Okay. We have to give counseling regarding food. हमारा टॉपिक फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, बट समझाना ही सबसे बड़ा पॉइंट है। Right. अगर कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आपको जस्ट डाइट चार्ट बना के दे रही है, शी इज नॉट राइट फॉर यू, आई से। Okay. बिकॉज सबसे पहले तो आपके माइंड के साथ खेलना जरूरी है। अगर आपका माइंड ही स्ट्रांग नहीं है तो आप वो डाइट चार्ट के साथ करोगे क्या? यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट। Right. Right. तो फॉलो करने तक पहुंचने के लिए आपका माइंडसेट पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्यों ये खाना आपके लिए जरूरी है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। हम वो करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से आपको टाइम टू टाइम काउंसलिंग देते हुए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और हम आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा करके हैबिट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। वो हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रह जाता है, और आप कभी भी वापस उस शेप में नहीं जा सकते। बिकॉज नाउ यू नो कि व्हाई दिस वाज रॉन्ग, व्हाई आई शुड नॉट डू दिस, सो यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द ओल्ड unhealthy way of lifestyle that they were following. Back to that. So that is what we do. Do you have any message to give to to our audience? So see, nutrition is something जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको लाइफ में रखना चाहिए। हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर कितनी भी बिजी आपकी लाइफस्टाइल है, आपको पहले अपने लिए दिन का 1 घंटा निकालना शुरू करना पड़ेगा। उस 1 घंटे में आप अपने लिए 3 मील कुक करना शुरू करिए। उसके बाद आप 10-10 मिनट निकालिए जिसमें आप थोड़ा सा वॉकिंग एटलीस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आ सकते हो। एवरी 1 आवर यू सिट, आप 10 मिनट अगर खड़े हो जाते हो, एक वॉक कर लेते हो, तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल से थोड़ा बाहर आ सकते हो। हर मील के बाद आप 15 मिनट वॉक कर लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड वर्कआउट। आपको ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाना है, योगा ही करना है, एरोबिक्स ही करना है तो ही वर्कआउट होगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। सो ऐसे छोटी छोटी चेंजेस लाकर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अपने फ़ोन से जोमेटो, स्विगी, जो भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एप्स है उनको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। ओके। अगर आप ऐसे इंसान हो जो क्रेविंग के वजह से अपना डाइट नहीं मेंटेन कर पाते, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है और वो ये सब वीडियोस देख के, फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस देखकर या जोमेटो स्विगी के नोटिफिकेशन देख के खाना ऑर्डर कर लेते हैं, उनको तो ये स्टेप लेना चाहिए। घर से जितनी भी पैकेज्ड आइटम्स है वो सबसे पहले रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज जब भी आपको एकदम से भूख लगेगी आप उस पे जाओगे जो रेडीली अवेलेबल है। हाँ। तो लाइक भुजिया है लोगों के घर में, या नमकीन होते हैं, ऐसे कुछ भी बिस्किट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप या तो एक ऐसे जगह रख दो जो आपके रीच से बहुत दूर हो, और उस पर एक पोस्टर लगा दो, दिस इज अनहेल्दी और प्रोसेस्ड। उसको आप कभी भी ऑप्ट जल्दी से मत करो। हमेशा हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को हैंडी रखो, सामने रखो टेबल पे, जब भी भूख लगे आप उसको चूज करो। सो दैट इज लाइक, ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आई थिंक बहुत लोगों की लाइफ में। ऐसे छोटी छोटी चेंजेस करने के लिए, लाइक यू बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बैग। आप अपने बैग में रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चिड़वा, मुड़ी या सीड्स, नट्स, ये सब चीजें रख सकते हो। फ्रूट्स रख सकते हो जो खराब नहीं होता जल्दी से, जैसे एप्पल है, बनाना है, आपने जस्ट पील किया और खा लिया। तो आपको सडनली जब भूख लगे तो आपका क्रेविंग हो भी रहा है तो यू ईट दैट फर्स्ट, फिर पानी पियोगे, फिर देखोगे और भूख है तो ही आप कुछ और खाओगे। तो आपका वहां पर खत्म हो गया भूख का वो। तो हम ये सारी काउंसलिंग करते करते लोगों को ट्रेन कर देते हैं। और जहाँ तक होता है, खाना जब खा रहे हैं बहुत कॉन्शियसली खाइए। वॉट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड, यू शुड नो वॉट यू आर पुटिंग इनसाइड। उसमें आप बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर ये खाकर मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो मैं क्यों खा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट। इफ यू ईटिंग,
So that is the worst thing you can do for your body. You're eating something for just greed of 10 seconds or 30 seconds. True. 2 मिनट के लिए आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है मैंने अपना फेवरेट फूड खाया, 2 मिनट बाद आप उसका टेस्ट भूल भी जाओगे, राइट, बट अंदर जाके जो प्रॉब्लम करे वो परमानेंट हो गया। तो हमको ये चेंज करना है कि हमारे प्लेट में जो चीज़ें हैं वो हेल्दी है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। वो अवेयरनेस ऑब्वियसली एक बार से नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, बट वंस यू नो, just to control your cravings, you should do these kind of things. Okay, so with this advice of yours, I again have one more question, and this is going to be my last question. Okay, मैं कब से बोल रही हूँ last question, but true. तो just जैसे कि आपने बोला, in order to meet the requirements of our taste buds, तो how do we fight with our cravings? खा लो। Okay. कभी भी एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हो रही है ना, फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक 1 बिग ग्लास ऑफ वाटर। Okay. एक फ्रूट खा लो, या लाइक कुछ भी थोड़ा सा, जैसे मखाना मैंने बोला है, ऐसा कुछ थोड़ा सा खा लो, एंड स्टिल यू वांट टू ईट इट। क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइम पे नहीं खाओगे तो आप शायद उसके थोड़ी देर बाद खाओगे और उससे भी ज़्यादा खाएंगे। ओके, राइट। इससे बेटर है कि आप एक छोटा सा रूल फॉलो करो, 80:20 का। 80% अपने पूरे दिन का डाइट को हेल्दी रखो, 20% अपने पसंद की चीजें खा लो, अच्छा, बट उसको कंसिस्टेंट रखो। ओके, ऐसा मत करो कि एक दिन तो पूरा हेल्दी खाया और एक दिन पूरा अनहेल्दी खाया। That is actually doing worse to Yes. our body, right? इससे better है if you're someone who cannot control your cravings and you're someone who wants to include things that you like in your diet, do 80-20 ratio. 80% have a very healthy diet, 20% eat what you like. So what you will do, you like chaat, you eat just 1 or 2 pieces of chaat instead of eating the whole plate. Okay. So what you are doing, you're satisfying your taste buds and you're also satisfying your stomach Yeah. by fulfilling it with other things which is healthy and just eating a small portion of the food you like. So that's how you create a balance. Okay. That will not harm your body. Okay. Thank you so much, Tamanna. Thank you so much for talking to us, and it was so informative. I'm sure our viewers must have taken down notes. It was so informative. Thank you.